জগৎগুরু শ্রী শ্রী শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত কন্যগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে এক নজর কাড়া বধূ পূজা। হ্যাঁ, এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সুহাসিনী পূজা, যেখানে নাকি 150-রও বেশি সধবা বধূকে দেবী রূপে, লক্ষ্মী রূপে, গৌরী রূপে, দেবী রূপে পূজা করা হয়। উক্ত দিবসে কন্যগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ এবং মন্দিরের গর্ভগৃহে ঘিয়ের প্রদীপ প্রজ্বলন হয়। এছাড়া বধূদের শাড়ি, ওড়না, ফুলের মালা পরিয়ে মন্ত্রপাঠের সহিত গহনা দিয়ে সাজিয়ে ফল সবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফল এবং তুলে দেওয়া হয় মিষ্টি, ডালা ও গহনা, সাথে দক্ষিণা। উক্ত দিবসে পূজাতে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত আচার্য শ্রী রবিশঙ্কর ত্রিবেদী মহারাজ, উপস্থিত ছিলেন চারণ পরিবার, উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রজিৎ মল্লিক মহাশয় ও তার পরিবার, জামশেদপুর থেকে, কন্যগর থেকে চ্যাটার্জি পরিবার, ব্যানার্জি পরিবার এবং দত্ত পরিবার, শ্রীরামপুর থেকে উপস্থিত ছিল মুখার্জি পরিবার, মল্লিক পরিবার। সমগ্র পূজাটি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে হৃদয় স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত ব্রহ্মচারী মহারাজ সচিত স্বরূপ সক্রিয়ভাবে পূজা পরিচালনা করেন এবং ব্রহ্মচারী মহারাজ শ্রীধর ত্রিবেদী মহাশয় তার পরিচালনায় তার সক্রিয়তা এবং দক্ষতা অব্যাহত রাখেন। উপস্থিত ছিলেন কন্যগর পৌরপ্রধান, পুলিশি নিরাপত্তা ছিল অটুট, মধ্যাহ্নে ভোগের ব্যবস্থা ছিল। পূজা পাঠে উপস্থিত ছিলেন মন্দিরের অন্যান্য ব্রহ্মচারী মহারাজ ঋত্বিক মিশ্রা, রবি চৌবে, সৌরভ মিশ্রা, হরি পাঠক ও সাগর তিওয়ারি প্রমুখরা। সমগ্র পূজাটি অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শকারী হিসাবে বিশ্বের দরবারে এক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে। भगवती को सुवासिनी माना गया है। सुवासिनी माने सौभाग्यवती। उसका पूजन करने से भगवती की पूजा हो जाती है। इसलिए भगवती का नाम भी है सुवासिनी नर्तन प्रीता, माने सुवासिनी की पूजन से प्रसन्न होने वाली, और वे स्वयं सुवासिनी रूप हैं। इस आधार पर हम आज समस्त स्त्री वर्ग को माँ के रूप में मानते हैं, बहन के रूप में मानते हैं, और अपने जीवन के कल्याण के लिए एक कन्या को पत्नी के रूप में समाज के द्वारा दी हुई स्वीकार करते हैं। उससे हम अपने कुल की वृद्धि करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ समस्त दैवी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इस आधार पर हम सभी लोग ये आराधना करते हैं, और इसकी प्रेरणा विशेष रूप से हमको भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में आए हुए महाराज स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जो द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उनके द्वारा मिली। वे स्वयं भी सन्यासी होकर के भी कन्या पूजन करते थे, कन्याओं का चरण स्पर्श करते थे, सुवासिनियों का पूजन करते थे और उनका आदर करते थे। इस तरह से आज हम सभी लोगों को ये प्रेरणा मिली है। उसी स्थान में, जिस स्थान की स्थापना गुरुजी ने की है, इस राजराजेश्वरी सेवा मठ कौन नगर में है। कौन नगर भी स्वयं एक तांत्रिक नाम है। कौन का अर्थ होता है त्रिकोण, और उन्हीं का जो नगर हो कौन नगर। तो यहाँ जिस श्रीयंत्र की पूजा होती है उस श्रीयंत्र में 43 त्रिकोण हैं। इतने त्रिकोण किसी और अन्य यंत्र में नहीं मिलते। इस आधार पर ये भगवती का त्रिकोण जो यंत्र है, श्रीयंत्र है, जो भगवती राजराजेश्वरी का मूल यंत्र है, उसी का पूजन होता है। उसी के आधार पर इन योगिनियों का पूजन होता है, जो सुवासिनी के रूप में मानी जाती है। আমার নাম ইন্দ্রজিৎ মল্লিক। আমার জন্মস্থান এবং কর্মস্থান জামশেদপুর। আজকের থেকে 7 বছর আগে
আমাদের পরম পূজ্য গুরুদেব জগৎগুরু শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতীজি মহারাজ আমার বৈবাহিক জীবন শুরু করিয়েছিলেন, আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী নন্দজা আর আমরা দুজন 7 বছর ধরে আছি, আমার একটি 5 বছরের মেয়ে আছে। আজকে এই যে আয়োজন, এটা আমার বৈবাহিক জীবনের 7 বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে মা ভগবতী রাজরাজেশ্বরী এবং গুরুদেবের কৃপায় আমরা 7 বছর খুব সুস্থ সবল সুখীভাবে নিজেকে আধ্যাত্মিক রূপে জাগৃত করে আমরা এই জীবন পরিপূর্ণ করে উঠতে পেরেছি। আজকে দিনে বৈবাহিক বর্ষগাঁট অ্যানিভার্সারি অনেকেই মানাচ্ছে, সবাই মানায়, কিন্তু এটাকে একটু অন্যভাবে মানানোর একটা চেষ্টা। খালি নিজেদের ভেতরে খেয়ে দিয়ে আনন্দ করে ফুর্তি করে ঘোরাটা একটা আলাদা রকম জিনিস, আর ঈশ্বরের কাছে আরাধনা করে যে স্ত্রী শক্তি আছে মা রূপে, তার উপাসনা, তার আরাধনা করা এবং তারপর বহু ভক্তদের মাঝখানে মায়ের কৃপায় প্রসাদ বিতরণ করা, সেটা তার একটা আলাদা সুখ। সেই আনন্দটা উপভোগ করার জন্যে একটা অন্যরকম প্রভুর কৃপা মানসিকতা থাকার দরকার। দেখুন, আজকের ডেটে যে সামাজিক ব্যবস্থাটা চলছে, এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে, প্রত্যেকটি মানুষই খুব বেশিভাবে আত্মকেন্দ্রিত হয়ে গেছে, সেলফ সেন্টার্ড হয়ে গেছে, এবং এই সেলফ সেন্টার্ড সমাজটা কারোর জন্যই কিন্তু কিছু উপকার দিয়ে করতে পারছে না। এক সেকেন্ড। আজকের ডেটে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, বাচ্চার থেকে নিয়ে বুড়ো পর্যন্ত প্রত্যেকটি লোকই, প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজের ব্যাপারেই খালি ভেবে যাচ্ছে। তো এই পরিকল্পনার থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে। যা কিছু করা, আমরা তো একটা সমাজের ভেতরে থাকি, সেই সমাজটাকে একটু মর্যাদিত রাখতে গেলে, একটু অনুশাসিত রাখতে গেলে, তো সমাজকে সাথে নিয়ে ধর্মের পথে চলাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা। একলা নিজের ভেতরে খুব সেলিব্রেট করে আনন্দ করে নিলাম, সেটা সেটা সামূহিক আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু সেটা কিন্তু লং টার্মে পারলৌকিক রূপে কোনো আনন্দ দিতে পারবে না মানুষকে। আরে এই যে সমাজের হিংস্র মানসিকতা শুরু হয়েছে আমাদের যে দেখছি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের এত সুন্দর পূজা, মানে নারীদের এর জন্য গুরু কৃপা দরকার। সদ্গুরুর আশীর্বাদ যদি আপনার উপর থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার সদ্বুদ্ধি হবে। सदगुरु आशीर्वाद थकले ये धरने जिनिस है। पालन किया, जगदम्बा का 300 नाम से हम लोगों ने अर्चन किया और सुभाषिनी को बैठा करके उनका सम्मान किया, उनका पूजन किया। उनका पूजन करने से जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जाएंगे। और वैसे भी जगदम्बा सुभाषिनी का रूप है। वर्तमान में जिस तरह से स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो सभी लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्री की कितनी पूजन है। क्योंकि धर्मपति नहीं कहा, धर्मपत्नी कहा है। आज जो स्थिति हो रही है, जिस ढंग से स्त्रियों के प्रति दुर्भावना लोगों के मन में आ रही है, जिस तरह से उनका अनादर लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जगदम्बा कुपित हो जाएंगी। तो माँ जगदम्बा से प्रार्थना किए, लोगों को प्रेरणा मिले कि हम लोग सुभाषिनी का सम्मान कर सके, पूजन कर सकें, जिससे घर में सौहार्द हो, घर में सुख समृद्धि हो और घर में स्त्री रहे। इस कारण से इसलिए जगदम्बा ने स्त्री का रूप लिया। इस कारण से उनको पूजन आज की पूजन का कोई विशेष महत्व है? पूजन की विशेष का पूजन हमारे सनातन धर्म में कन्या पूजन, मातृ पूजन, सुभाषिनी पूजन का बड़ा ही महत्व है। अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे, शुक्रवार को या पूर्णिमा को किसी कन्या का पूजन कर दे, और अन्नपूर्ण सदापूर्ण पत्नी तो अन्नपूर्णा का स्वरूप है, तो घर में भोजन बनाती तो अन्न से मन बनता है, उसका सम्मान होगा तो आपके घर की स्त्री कभी नहीं जाएगी। इसलिए प्राचीन काल में भी भगवान राम ने यही किया। जब रावण ने महिलाओं का अनादर शुरू किया, तब उसका वध किया। सीता को ले गया, उनका अनादर जब किया, तब समूल नष्ट हो गया। इसलिए बाली को मारा उन्होंने। भाई के साथ साथ की पत्नी के प्रति दुर्भावना ले आया, उसका वध हुआ। वर्तमान में आप पूरे विश्व की स्थिति आप देख लीजिए, महिलाओं के प्रति क्या भाव हो रहे हैं। 3-3 वर्ष कन्या के साथ बलात्कार, पाशविक वृत्ति नहीं तो और क्या है। इन सबसे बचने के लिए हमारे पास है क्या? इसलिए जगदम्बा का आराधन ही एक हमारे पास मात्र रास्ता है। उसी रूप में हम लोगों ने आज उनका सम्मान किया, पूजन किया। नवरात्र में हम लोग कुमारी पूजन करते हैं।
अष्टमी को सुभासिनी पूजन करते हैं संधि पूजन के बाद। आज उसी रूप में हम लोगों ने एक उत्सव टाइप का रखा, जगदम्बा के चरणों में तरह तरह की वस्तु अर्पित करके पूरा सम्मान के साथ उन लोगों का सम्मान किया, भोग प्रसाद दिया, जिन्हें वो आशीर्वाद दें जिससे हम लोग इस क्षेत्र में और बढ़ सके, सेवा कर सके समाज देश की। आज कितनी महिलाएं 150 से ज़्यादा संख्या थी। अब इसमें 300 है, 1000 है, तो भविष्य में भगवती चाहेंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। वर्तमान में हम लोगों ने भी 150 का सुभाषिनियों का पूजन किया, उनका सम्मान किया, उनका आदर किया। चलो।